Hello guys, welcome to the class. And now, today our topic would be world of e-coaching in which you are studying is now. The today's our topic would be surds and indices. It is an integral part of number systems, right? Surds and indices. आपने नाम तो definitely सुना होगा, but what we'll be doing in this topic is that we'll go through the concepts कि surds create कैसे होते हैं, उनके साथ basic mathematical operations कैसे करते हैं, उनकी properties और उनके कैसे questions पूछे जाते हैं, ठीक है? Talking about same indices, right? Indices में क्या होगा? Indices is a plural form of index, जो हम indices में पढ़ेंगे. Same properties, applications and different examples which were asked in different examinations, right? So this is something that we're gonna do today in surds and indices. Let's start. I hope you have your notebook, your pen ready, and you are mentally ready for this class, right? Be seated in a proper manner and try to be as if you are in a classroom, right? चलिए start करते हैं हम लोग. Now, the first thing that we need to understand in surds and indices is what is surd? Surd is an irrational term, right? Surd is basically an irrational term. Now, first, sir, what is an irrational term? Irrational, as you might have gone through in types of numbers, what's an irrational number? A number which cannot be represented in terms of P upon Q, where Q is not equals to 0 and P and Q are integers. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स में देखा था. आई होप आप वो स्लाइड्स में जा चुके हैं, ठीक है? अगर नहीं गए तो यू कैन रिफर देयर, और मैंने यहां थोड़ा आपको रिवीजन जैसा भी दे दिया है, ठीक है? सो व्हाट इज एन इरेशनल टर्म? समथिंग लाइक दिस. या अगर उसको सिंपल भाषा में बताऊं ना, तो ऐसा एक टर्म जिसमें रूट रह जाता है. लेट्स से रूट 3, ठीक है? रूट 3 कैन नॉट बी सॉल्व, बट व्हाट इफ इट इज रूट 4? हाँ, तो रूट 4 तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, इट बिकम्स 2, राइट? बट नॉट रूट 3, not root 3. So root 3 remains as it is, and root 3 cannot be represented in terms of P upon Q. Hence it is called a irrational term. So basically आपका जो surd होता है वो होता क्या है? It's an irrational term, mainly results from root of an integer, right? But not all integers. An integer, कोई भी एक आधा integer, not all integers. जैसे हमने example लिया, ठीक है? जैसे ये pure surd है, there is no rational term in it, pure surd, root 3, ठीक है? एक होता है mixed surd, 3 root 5, 5 plus root 3. Why it is called mixed surd? सीधी बात है, surd किसे कहेंगे? irrational term को. ये रहा आपका irrational term, ये रहा आपका irrational term, ठीक है? लेकिन इसमें एक integer भी तो है, एक integer भी तो है, समझ रहे हो? So this is not irrational term, this is a rational term, right? इसलिए इसे हम mixed surd कहते हैं. क्या कहते हैं? Mixed surd. याद रखिए इसे, ठीक है? As I have shown here, this is the rational part and this is irrational part. इसलिए इसे कहते हैं mixed surd, right? आगे बढ़ते हैं हम लोग. Order of the surd, ठीक है? समझता है इसको, ठीक है? ध्यान से देखना. It's basic only, ठीक है? जैसे एक मैं आपको ऐसे एक नंबर लिखा हुआ है मैंने, 8th root of b. हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? हाउ डू वी से दिस? 8th root of b. क्यों ऐसा बोलेंगे सर? अगर मैं ऐसा कहता हूं समथिंग लाइक दिस, हम इसे क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 3. 2 हम लिखते नहीं है बिकॉज इट्स डिफॉल्ट, राइट? स्क्वायर रूट ऑफ 3. लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कहता हूं कि समथिंग लाइक दिस, व्हाट इज दिस? क्यूब रूट ऑफ 4. यहां पे 3 है, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 4. सो ये क्या है बेसिकली? यहां पे a है तो 8th रूट ऑफ b. नाउ इसमें जो b है ना उसे रेडिकंड कहते हैं. दिस इज रेडिकंड, जिसका हम कुछ रूट निकाल रहे हैं, एंड जिस ऑर्डर का ये जो है ना उसे हम ऑर्डर कहते हैं उसका, ठीक है? तो आप मुझे बताओ इन दोनों में ऑर्डर क्या है सर? इसमें 2, इसमें 3. परफेक्ट है ना? इसमें ऑर्डर क्या है? 2. इसमें ऑर्डर क्या है? 3. रेडिकंड क्या है? 3. रेडिकंड क्या है? 4. समथिंग लाइक दिस. सेम एग्जांपल मैंने यहां भी लिया होगा, ध्यान से देखे. जैसे ये रहा 7th रूट ऑफ 16. 7th रूट ऑफ 16 क्या होगा इसमें? व्हाट इज योर 16 इज योर रेडिकंड. सिंपल सी बात है, ठीक है? 16 is your radicand and this 7 is your order. Quite simple to understand. Am I clear?
यस, बेसिक्स कि सर्ड होता क्या है और सर्ड का ऑर्डर क्या होता है, एकदम सिंपल बेसिक्स है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। नाउ एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, अभी हम जो समझे ना उसको अच्छे से समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, एक दो एग्जांपल, ताकि वी अंडरस्टैंड व्हाट्स एन ऑर्डर, व्हाट्स अ सर्ड, राइट। एक्सप्रेस 5 इन द ऑर्डर ऑफ 3। बात समझे, मैं ऐसा पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना, मुझे सिंपल एक चीज करना है, 5 को मुझे एक्सप्रेस करना है जिसमें 3 ऑर्डर आता हो। मैंने तो जो पूछा है ना उसका मैथ्स लिखा है और कुछ नहीं किया, अब बात समझे, ठीक है। एक्सप्रेस 5, ऑल राइट, इन द ऑर्डर्स ऑफ 3, सो 5 शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ 3. You tell me, you can pause the video and think, what should I write here? Whose third order, or in simple sense, cube root, right, will result into 5. Sir, simple है ना, 5 into 5 into 5. या फिर अगर मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूं, सर 5 क्यूब का क्यूब रूट वुड बी 5. कितना सिंपल है समझना, 5 का क्यूब और उसका अगर मैं क्यूब रूट निकालता हूं, व्हाट इज क्यूब रूट एक्चुअली, इट इज 1/3, ठीक है। सो दिस गेट्स कैंसल्ड, क्या आया 5. सो बेसिकली 5 क्यूब इज अवर आंसर, और वी कैन से इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट 5 in the third order or cube root, it will be 125 because it is 5 cube. 125 कहां से आया सर, this is 5 cube, exactly right. So quite simple to understand, that's what I have done here. Something का cube root is 5, 125 का cube root will be 5. So look, I have represented 5 in the terms of third order, in order of 3. You can see here, it is quite simple to understand. ठीक है, डन। चलिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा सर एक और क्वेश्चन हो जाए, है ना, डेफिनेटली। चलिए देखते हैं हम लोग। वाओ, गुड। पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस, कम ऑन एवरीवन। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, राइट। इसको क्या लिखा है इसने, एक्सप्रेस क्यूब रूट ऑफ 6 इन द ऑर्डर्स ऑफ 9। मुझे कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, जो लिखा है ना वो मैं लिख लेता हूं, एक्सप्रेस क्यूब रूट ऑफ 6 इन द ऑर्डर ऑफ 9। यहां पे 9 आना चाहिए, वेरी सिंपल, राइट। ठीक है सर, आप समझे यहां ऑलरेडी 3 है जिसकी जगह आपको चाहिए 9। वेरी सिंपल अप्रोच आई शो यू, राइट। यू माइट हैव डन एनीथिंग डिफरेंट बट आई शो यू द सिंपलेस्ट अप्रोच, राइट। 3 to 9, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सर यहां अगर 3 है और मुझे यहां 9 चाहिए, तो बेसिकली मुझे यहां 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो 9 आएगा ना। लेकिन मैथमेटिकली अगर मैं यहां 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो अंदर 3 का पावर बढ़ाना होगा। सर नहीं समझ आया। पैरेलली एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। चलिए, अगर मैं ऐसे कहूं कि x इज इक्वल्स टू 5, फेयर इनफ, ठीक है। अगर मैं x क्यूब करूंगा तो मुझे 5 क्यूब करना होगा, सिंपल सी बात है। आई कैन सिंपली से लाइक दिस, राइट। नाउ अगर मैं x का क्यूब रूट करूंगा, x का क्यूब रूट करूंगा तो मुझे 5 का भी क्यूब रूट करना पड़ेगा। डन, ठीक है। अब यहां पे ऑलरेडी क्यूब रूट है, मैं उसका भी एक क्यूब रूट कर रहा हूं, समझना बात को। तो रूट के अंदर क्या होगा, यहां पे जो वैल्यू है, लेट्स से इट इज x, राइट। यहां पे जो वैल्यू है वो x कैसे डिफाइन होगा, ये जो 6 है उसका भी हमें क्यूब करना पड़ेगा। अंडरस्टूड, पक्का, ठीक है। आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, बात समझना, राइट, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इट इंटायरली अगेन, ध्यान से देखें। देयर, ये हमारे पास है एंड वी नीड ऑर्डर ऑफ 9, वी नीड ऑर्डर ऑफ 9। अच्छा, इसमें से ही जाना है, ये बात समझे। यहां पे मुझे 9 चाहिए, यहां पे है 3। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि अगर मैं क्यूब रूट जो है उसको 9th रूट करना चाहता हूं, बट वैल्यू शुड बी सेम, वैल्यू शुड बी सेम। सो इसका 9th रूट करने के लिए व्हाट विल आई हैव टू डू इज, लेट्स से इफ आई मल्टीप्लाई 3 into 3 that becomes 9. So
ये जो अंदर है उसको मुझे क्यूब करना पड़ेगा ना। सर ये समझ नहीं आ रहा आप अंदर क्यूब क्यों कर रहे हो। एग्जैक्टली, आई विल एक्सप्लेन यू। मैथमेटिकली आई कैन नॉट चेंज द वैल्यू, आई नीड टू रिप्रेजेंट दिस ओनली इन दिस। ऐसा नहीं है कि मुझे x बोला है और मैंने y को रिप्रेजेंट कर दिया। नो, आई कैन नॉट डू दिस, राइट। मुझे x को ही रिप्रेजेंट करना है, सो इट इज क्यूब रूट ऑफ 6, दैट वैल्यू कैन नॉट चेंज। सो इफ आई राइट क्यूब रूट ऑफ 6 लाइक दिस, और इफ आई वॉन्ट टू राइट दिस इन द ऑर्डर ऑफ 9, सो मैं क्या कर रहा हूं, उसका थर्ड रूट के ले रहा हूं। तो इसका क्यूब 3 करना, ताकि आपको समझ आए। लुक, आई विल शो यू। जैसे लेट्स से क्यूब रूट ऑफ 6 इज बेसिकली 6 raised to 1 by 3, is basically 6 raised to 1 by 3. Yes sir, perfect. अब मुझे क्या करना है, यहां पे चाहिए 1 by 9। अब 1 by 3 से 1 by 9 ऐसे तो आएगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, 6 raised to 3 into 1 by 3 into 1 by 3। क्या क्या होगा, ये 3 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विथ 6 raised to 1 by 3। नाउ दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो दिस इज 6 raised to 1 by 3। हमें 1 by 3 से 1 by 9 जाना है, सो मैंने 1 by 3 मल्टीप्लाई किया, 3 यहां ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इट गेट्स कैंसल, वन ऑफ द 3 गेट्स कैंसल्ड एंड यू आर लेफ्ट विथ 6 raised to 1 by 3। एग्जैक्टली द सेम थिंग आई हैव डन हियर। यू सी 3 का 3 into 3 करना था, तो 6 के पावर में मैंने पावर 3 डाल दिया है, ठीक है। सो अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विथ 6 क्यूब का क्यूब रूट, 9th रूट, दैट इज 216। सो मतलब क्या पता है आपको, दिस इज सेम एज दिस, दीज बोथ आर सेम। बात समझो, दिस बोथ आर सेम, एग्जैक्टली राइट। मतलब 9th रूट ऑफ 216 और क्यूब रूट ऑफ 6 वुड बी सेम, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन चेंज योर ऑर्डर्स। आई होप नाउ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ के कैसे करेंगे, ठीक है। बट स्टिल विल ट्राई वन मोर एग्जाम्पल। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Let's see the next example, right? Once again, we'll try this. This is also one of the good example. You'll understand it better. Please stop the video or pause the video and try this. चलिए, I hope आपने कर लिया होगा इसे try, right? क्या लिखा है यहाँ पे? Express this in the orders of this. सर अभी आपने explain किया, हमने तो वही method किया। कैसे? सर basically क्या करना है? You just have to write this 5 2. This should be written as this into 8. Very simple, right? Now second root और क्यूब स्क्वायर रूट से जाना है हमें 8th रूट। सर इसका सिंपल प्रोसीजर ये होगा कि आप 2 into 4 करेंगे। यस सर, अभी हमने देखा। तो ये into 4 आप ऐसे ही नहीं कर सकते। into 4 मतलब 4th रूट आपने बढ़ा दिया ना, तो यहां पे भी आपको 5 का पावर 4 करना पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू डू इट, राइट। आपको क्यूब मतलब ऑर्डर 8 लाना है, सो यहां 4 into 2 किया तो यहां पे 4 करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। सो क्या आ जाएगा यहां पे, आई कैन सिंपली राइट दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ 8th रूट। व्हाट इज 5 power 4? सर 5 power 4 इज 5 square into 5 square और 25 into 25, that is 625. So ultimately, what is it? It is 625. That is 8th root of 625. That is 8th root of 625. All right? ठीक है? So again, look at this. What I have done here. There, same thing. 2 से 4 किया, so that's 8. That is 5 power 4. That is 625. Right? ठीक है? I hope you understand now how to build with or how to play with orders of the roots. All right? चलिए, we'll go to the next point. Now operation of surds, मतलब surds भी एक ऐसी नॉर्मल चीज है नहीं। मतलब नॉर्मली मान लो 3 and 5 दिया मैंने आपको, बोलो ऐड करोगे 3 + 5 8, you can easily do that, right? But surds से रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं ना, वो थोड़े डिफरेंट होता है। बेसिक्स है, but we need to understand it, right? So what we can do here is like addition and subtraction, very basics, right? जैसे मान लो मेरे पास 2 surds है, these are mixed surds if you can see. 6 is a rational part whereas this is a irrational part, this is irrational part, here it is 5 is an integer, 2 is an integer, so it's a all over mixed surd. इनका मुझे क्या करना है, बेसिकली इनका मुझे एडिशन करना है। सो हमेशा याद रखिए इंटीजर पार्ट से इंटीजर पार्ट्स का रिलेशन होता है,
while adding or subtracting we need to focus with rational. So this is 6 plus 7, simple sir, 13, fair enough, and 2 root 3 minus 5 root 3, so this is 2 minus 5, that is minus 3 root 3. It is as simple as that. I hope you understood this, right? मैंने क्या किया, इंटीजर से इंटीजर के साथ और मिक्स्ड सर्ड से मिक्स्ड सर्ड, as simple as that. All right, so it is like simple, 13 minus 3 root 3. माइनस 3 कहां से आया सर, प्लस 2 माइनस 5 रूट 3. लेकिन बात समझना, मान लो यहां पे अगर आप कुछ ऐसी गलती मत कर बैठना, जैसे ऐसे लिखा होता ना 6 प्लस, देखो सिमिलर एग्जांपल लेता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. 6 प्लस 2 root 3 प्लस 7 माइनस 5 root 2, तो 6 प्लस 7 13, करेक्ट, माइनस 2 root 3 माइनस 5 root 2 3 root 3 और 3 root 2, दोनों ही गलत है. नहीं, क्या होगा, आई शो यू. इट विल बी सिंपल, 13 माइनस 5 root 2 प्लस 2 root 3. That's it. Because the irrational part is not same, so you cannot add or subtract them. You have to keep them as it is. Clear? Sir, basics है, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. Now next part. So the next operation that we will be looking at is multiplication. Very important operation. ध्यान से देखना, right? Now let's say these are the two mixed surds again which we have to multiply, right? Now let's see how we can do this. So here it is as simple as a plus b into c plus d. How you usually perform this? Here we don't have to see that integer से integer and irrational या rational से rational. No, we don't have to do that. We just simply have to follow this procedure. Sir, इस केस में हम क्या करते? We could have written a into c plus a into d plus b into c plus b into d. That's what we could have written. Simple, right? Perfect. तो यही चीज मुझे यहां पे भी फॉलो करनी है. यही चीज मुझे यहां पे भी फॉलो करनी है. So what I can do here, ध्यान से देखिए, that is 3 into 2, sir 6, done. सबसे पहले मैंने ये वाला लिया, ठीक है. Then 3 into root 5. So plus 3 root 5, fair enough. Minus 4 root 5 into 2, that is minus 8 root 5, fair enough. And minus 4 root 5 into root 5, L plus है ना, तो minus plus minus, so 4 root 5 into root 5. I have intentionally kept it as like this, right? Let's simplify this further. So I can simply write 6 plus 3 root 5 minus a root 5, that is minus 5 root 5. Done, sir. What is this? Minus 4 into root 5 into root 5. What is root 5 into root 5? Sir, 5. Perfect. That is 4 into 5. So ultimately you can write this 6 minus 20. That is minus 14 minus 5 root 5. Minus 14 minus 5 root 5. Look, I have not done anything new. I have simply used a simple multiplication law. That's it, right? So it is minus 14 minus 5 root 5. Same thing I have done. Again, I'll explain. ये a into b, 6, 3 into root 5. There it is. Minus 4 root 5 into 2, minus 8 root 5. 4 root 5 into root 5. So root 5 into root 5 becomes 5. 5 4s are 20. That's minus 20 plus 6 minus 14. This is simply minus 5 root 5. This is a pure operation of multiplication on surds, right? So यहां से दो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं. एक, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त we just need to deal with integer to integer, rationals to rationals. Very simple, right? And multiplication करते वक्त we don't have to see integer to integer or something like that. We have to simply use multiplication law. All right? चलिए, I hope you understand the basic operation. इसके अलावा भी कुछ operations है that we'll have to see. Let's see. चलिए आगे बढ़ते हैं. So that is
लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, जो हमने सीखा उससे रिलेटेड. यू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस. रूट 900. सर दिस इज आई थिंक वेरी सिंपल. 900 किसका स्क्वायर है? इट इज 30 into 30 is 900. That means root 900 would be 30. Done, right? So this is 30 into root 40. अब बात समझना, ऐसे केसेस में यहां पे तो कोई 30 इंटू रूट 40 नाम का ऑप्शन ही नहीं है, वरना हम वही लिख देते 30 रूट 40 हमारा आंसर. लेकिन एक्चुअली यही आंसर है, बट इट नीड्स टू बी सिंप्लीफाइड फर्दर, राइट? इसमें से ही कुछ एक आंसर आएगा हमारा, राइट? सो रूट 40 दिस बिकम डायरेक्टली वेरी इजी बिकॉज इट्स अ स्क्वायर, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर. 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, whereas 40 is not, but 40 would contain few numbers which are perfect square. I'll repeat. 40 के अंदर कुछ ऐसे नंबर्स होंगे ना, जैसे if I write 8 into 5, but none of them are perfect square, neither 8 nor 5. But what if I write 40 as 10 into 4? Is there any number which is a perfect square? Yes sir, 4. Fair enough. फायदा क्या होगा? वो तो रूट के बाहर आ सकता है ना. So it is 30 into, can I write 4 into 10? Yes. This root 4 comes out. We can simply write 30 into 2. Root 4 is 2. 10 का रूट नहीं निकाल सकते. I'll keep it as it is. So 30 into 2, that is 60 into root 10. Do we have any option like this? Yes, sir. Option D. Simplification of roots. Very simple, right? Same thing I have done here. You see, this I have written as 4 into 10. And finally, you get 60 root 10 as your answer. Did you get correct? Very good, right? So this is very simple thing, right? To understand how to operate over the roots. Let's go with the next slide. Conjugate of surds. Have you ever heard this word conjugate? डरने की जरूरत नहीं है ना, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूं वैसे नहीं हूं, वैसा वर्ड है ये कॉन्जुगेट. कोई बड़ी बात नहीं है, कितना सिंपल वर्ड है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, To find the conjugate of the surd, we write the same surd but replace the sign in between. बताओ कितना सिंपल चीज है ना? एक्सप्लेन करता हूं, ज्यादा समझ आएगा. जैसे एक सर्ड है रूट 3 प्लस रूट 5. ठीक है, ये सिंपल एक सर्ड है, इसका मुझे कॉन्जुगेट लिखना है. What will be its conjugate? What will be its conjugate? पढ़ते हैं. To find the conjugate of the surd, we need to write the same surd. ठीक है, सेम सर्ड लिख लिया भाई हमने, रूट 3 रूट 5. बट मैंने प्लस क्यों नहीं लिखा वो मैं समझाता हूं. रिप्लेस द साइन इन बिटवीन. माइनस. अगर ये प्लस है तो ये माइनस. बस एग्जैक्टली दिस इज व्हाट कॉन्जुगेट इज, राइट? यू सी, conjugate of the surd, root 3 minus root 5. As simple as this, right? So if I ask you, what is 4 plus root 3 का conjugate? 4 minus root 3. क्या ही है इसमें? Nothing difficult at all, right? ठीक है, चलिए. तो after this conjugate concept, let's go to one of the topic which uses this conjugate concept. ठीक है, that is called rationalization और डिवीजन ऑफ सर्ड्स. ठीक है, आपने ऐसा सोचा होगा ना बीच में कि सर आपने एडिशन चलाया, आपने सब्ट्रैक्शन चलाया, आपने मल्टीप्लिकेशन चलाया, where was the division? Now for division, first we needed to understand what is conjugate, then we need to understand what is rationalization, and then we can understand how to divide surds. That's what we are doing. Focus करें. ठीक है, what is rationalization process? Actually आप समझे, rational, ये वर्ड तो सुना है सर हमने, ऑफ कोर्स, राइट? अ वर्ड विच रैशनल मतलब 3, 6, 5.8, 0, -11/4, ये सारे रैशनल टर्म्स है. इररेशनल मतलब रूट 3, पाई, ये सारे इररेशनल है. सो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? किसी इररेशनल टर्म को हमें रैशनल बनाना है. ऐसे कैसे कर सकते हैं, वही समझते हैं हम लोग. ध्यान से देखें. ठीक है, rationalization is a process where the surd written in a different form, in which
डिनोमिनेटर इज फाइनली कंटेन्स ओनली रैशनल नंबर्स। यार देखो, पूरा इरेशनल नंबर रैशनल नहीं बनने वाला। रैशनलाइजेशन किसके लिए होता है? डिनोमिनेटर जो होता है ना, समथिंग लाइक दिस p अपॉन q, तो ये जो q है दैट्स डिनोमिनेटर। वो डिनोमिनेटर को हमेशा सिर्फ उसमें रैशनल टर्म्स होने चाहिए। हियर द प्रोसेस वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सर्ड एंड द कॉन्जुगेट ऑफ द सर्ड इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, देखते हैं पूरी प्रोसेस क्या कहना चाहती है, वो समझते हैं हम लोग। 5 upon root 6. Now, it is usually a practice in mathematics that you don't write denominator as an irrational number. It is a usual practice, right? So, अब 5 upon root 6 का वैल्यू मुझे चेंज नहीं करना है. I don't need to change the value, but डिनोमिनेटर में सर्ड नहीं चाहिए हमें, ऊपर न्यूमरेटर में चलेगा। डिनोमिनेटर में कंपलसरी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। कोई बात नहीं सर, मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैथमेटिकली, ऑफ कोर्स यस। ये 1 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ रूट 6 अपॉन रूट 6, ऑफ कोर्स यस, राइट। व्हाट आई हैव डन हियर, मैंने सीधा सीधा सर्ड से मल्टीप्लाई कर लिया। यहां पे मुझे कॉन्जुगेट की जरूरत नहीं है, आई हैव जस्ट मल्टीप्लाई विथ सर्ड। सो क्या आएगा, इट इज 5 रूट 6 अपॉन रूट 6 इंटू रूट 6, दैट इज 6। ठीक है, 5 रूट 6 अपॉन 6। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन प्रोसेस। वेरी सिंपल सर, डिनोमिनेटर में एक रैशनल टर्म होना चाहिए, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स इट, राइट। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि ज्यादा थोड़ा समझ आए हमें। ठीक है, नाउ इफ आई टेक दिस 2 plus root 2 upon 2 minus root 2. You only think and try to rationalize it. How you will do this? You can pause the video and try. चलिए, आपने ट्राई किया होगा। Now, I think if you tried it enough and if you read this definition जो हमने यहां पे किया, और conjugate surd, जो कि एक्चुअली हमें यहां करना होगा। अगर आपने ऐसे किया है then you might have got it, right? कोई बात नहीं, let's see. ठीक है, 2 minus root 2 है ना, डिनोमिनेटर में सर्ड है, दैट्स व्हाट वी डोंट वांट। डिनोमिनेटर में हमें सर्ड नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे इन दिस केस, व्हाट विल डू इन दिस केस, वी विल डू 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2। अगेन आई कैन मल्टीप्लाई विथ 1, यस, लेकिन इसको रिमूव करने के लिए आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विथ कॉन्जुगेट ऑफ इट, 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2। 2 माइनस रूट 2 का कॉन्जुगेट क्या है, 2 प्लस रूट 2, वो हमें मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। सर व्हाई वी डू दिस, आई विल शो यू व्हाई वी डू दिस, राइट। नाउ व्हाट इज दिस, 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, आई कैन सिंपली राइट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। वो तो एक्सपैंड होके कुछ आ जाएगा ऊपर, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें न्यूमरेटर से कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, रैशनल, इरेशनल, मिक्स, कुछ भी। बट डिनोमिनेटर इफ यू सी, this is a minus b, this is a plus b, a minus b into a plus b can be written as a square minus b square. That's what we have to write here as well. 2 minus root 2, 2 plus root 2, so a square minus b square is 2 square, that is 4, minus root 2 square, that is 2. So I can simply write this is 2 plus root 2 whole square upon 4 minus 2, that is 2. Now our concern was denominator should not be irrational. हो गया, डिनोमिनेटर 2 आ गया, इट्स अ रैशनल टर्म। अब ऊपर एक्सपेंड कर लो, बात खत्म। ठीक है, आई विल शो यू, दैट्स व्हाट वी हैड टू डू, है ना। 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 आ गया, ऊपर का एक्सपेंशन भी अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 6 प्लस 4 रूट 2। सर ये ऊपर का एक्सपांशन एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देते तो अच्छा होता। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, राइट। सो 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है ये, दिस इज व्हाट, a प्लस b का होल स्क्वायर। आई कैन राइट एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू a इंटू b, दैट इज इंटू 2 इंटू रूट 2। सो 4 प्लस 2 6, 2 into 2 4, 4 root 2, simple,
6 plus 4 root 2. I hope I am clear, right? So this is also a basic operation over the surd rationalization process. Or you see here we have done the division. How to divide surds? Divide करने के लिए आपको यही करना होता है, a simple rationalization process. Rationalization is multiplying with conjugate. आगे बढ़ते हैं हम लोग, right? We go to the next part. जैसे अभी हमने थोड़ा ऊपर से देखा दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर हम कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है. सो उसी को हम थोड़ा डेप्थ में जाके देखते हैं, अप्लाइंग द सेम आइडेंटिटीज ओवर द सर्ड्स एज वेल. ठीक है, जैसे समथिंग लाइक दिस. हमें नॉर्मली पता है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो हमें पता है, लेकिन हमने यहां a प्लस बी की जगह a प्लस रूट बी डाला हुआ है. यू सी, सो a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन रूट बी है ना, सो रूट बी का स्क्वायर वुड बी बी, ए प्लस 2ab, दैट इज 2 into a रूट बी. अब माइनस में सिर्फ यहां माइनस आ जाएगा. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. दिस इज नॉट टू बी मॉक्ड अप, ठीक है, दिस इज जस्ट टू बी अंडरस्टूड दैट दीज रूट और द सर्ड्स में भी वही आइडेंटिटी कैसे लगेगी, कोई नई बात नहीं है. ठीक है, सेम थिंग इफ आई ट्राई टू अप्लाई ओवर क्यूब. क्यूब आपको पता है ना क्या होता है. अगर इफ आई वॉन्ट टू राइट a प्लस बी का क्यूब, व्हाट इज इट, इट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. यही चीज अगर मैं रूट बी के साथ इस पे अप्लाई करने का ट्राई करता हूं, व्हाट हैपेंस हियर, इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब. अब समझे, रूट बी का क्यूब वुड बी, कैन आई सिंपली से रूट बी का स्क्वायर इंटू रूट बी. वही हुआ ना, क्यूब मतलब स्क्वायर इंटू बी रूट बी. रूट बी का स्क्वायर इज बी, सो इट इज बी रूट बी. दैट्स व्हाट इट इज रिटन हियर. सो दिस इज योर a क्यूब, दिस इज योर b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b. सो 3a स्क्वायर b की जगह यहां पे क्या है, रूट b. वेरी सिंपल. एंड देन 3ab स्क्वायर. So 3a b square मतलब root b का square, that is b again. This is a simple identity to understand applied over surds, right? ठीक है, वैसे ही माइनस वाला भी आप खुद से देख सकते हैं आराम से. ठीक है, सेम थिंग वी डिड इन द जस्ट प्रीवियस एग्जांपल, राइट? दैट इज a minus root b, a plus root b, or this can also be understood as a minus b into a plus b, written as a square minus b square. But here instead of b we have root b. Root b का square would be simply b, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. So एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछ रखा है आपको, that is what is square root of 31 minus 2 root 3? Square root of 31 minus not 12 root 3, right? I have given you option as well. Try this. Please pause the video and try by yourself. चलिए, आपने ट्राई किया होगा इसे, ठीक है. नाउ सर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना तो डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए. व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कोर्स यस, इट वुड बी डिफिकल्ट, ठीक है. लेकिन सर किसी का स्क्वायर फाइंड करना तो इजी होता है ना. अब एक क्या, आप मुझे 3-4 ऑप्शंस भी देंगे तो आई कैन फाइंड स्क्वायर्स इजीली, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड्स वुड बी लिटिल डिफिकल्ट. तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम इसका स्क्वायर ढूंढ के देखते हैं. मतलब हमें क्या करना होगा, बेसिकली we'll just have to see that which of the option का स्क्वायर is this. अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो मतलब अगर मैं आपको बोलता हूं कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 25, सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ 25 यू आर फाइंडिंग कि सर 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा ना. सिंपल, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, राइट? सो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 31 minus 12 root 3? ठीक है, इसको ट्राई करते हैं. 2 plus 3 root 3 का होल स्क्वायर. सर 2 plus 3 root 3 a square, that is 4, plus b square, that is 3 root 3 का स्क्वायर, that is 27, plus 2 into 2 into 3, that is 12 root 3. लेकिन अब देखें यहां पे तो माइनस है, बात समझ रहे हो, और यहां पे प्लस दिया हुआ है, बात समझे. सो आप जब सेंटर में प्लस वाला नंबर लेके जब आप ये आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है,
तो डेफिनेटली इट विल बी प्लस हियर, तो यहां माइनस आ ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो मेरी? पक्का है ना? इसका मतलब सर ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। थोड़ा दिमाग लगा जब हमने पहली ही बार अटेम्प्ट किया, तो वैसे पहले से ही समझ आना चाहिए था, ठीक है? तो यही एक ऑप्शन हो सकता है, बट देयर इज एज ऑप्शन, देयर इज नन एज ऑल्सो ऑप्शन। तो मुझे चेक तो करना ही पड़ेगा। अगर मान लो यहां पे भी कोई ऑप्शन प्लस वाला दिया होता, जैसे 3 + 4√3 और समथिंग लाइक दिस, इसे भी कैंसिल करके मैं सीधा ये टिक कर देता। लेकिन क्योंकि नन एक ऑप्शन दिया है, आई हैव टू चेक विद दिस एज वेल। ठीक है, कोई बात नहीं सर, इससे हम चेक करते हैं क्या ये सही है कि नहीं। ठीक है, इट इज 2 - 3√3, एक्चुअली इट इज प्लस और माइनस 2, 3√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो इट विल बी 2 + 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसका स्क्वायर वुड बी अगेन प्लस ही आएगा, स्क्वायर है इसलिए इट वुड बी 3 स्क्वायर 9, 9 3 = 27, और ये माइनस है इसलिए -2 × 3 दैट इज 6 × 2, 6 × 2 आएगा। ठीक है, सो इट इज 6 × 2 दैट इज 12√3, so this is 31 - 12√3, there it is. Hence the answer plus or minus 2 - 3√3. I hope you understood. जी ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is true about A and B? Which of the following is true about A and B? Read the question carefully, pause the video and try by yourself. चलिए, आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए एंड बी। अब ये वैल्यूज एक्चुअली तो हम कैलकुलेटर में डाल के ही देख ले, लेकिन क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है आपके एग्जाम में? बिकॉज रूट तो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर में होगा, सीधी बात है। ठीक है, तो तरीका हम ऐसा ढूंढेंगे कि हम कोई भी एग्जाम के लिए अपीयर करें, वी वुड बी एबल टू सॉल्व इट। दैट्स व्हाट वी नीड टू फोकस, राइट? ऐसे तरीके हम सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं। तो इसका जो पहला मेथड है इसको सॉल्व करने का, आपने शायद किसी तरह से किया होगा, लेकिन इसका जो पहला मेथड है इसको सॉल्व करने का, दैट फर्स्ट मेथड इज अप्रॉक्सीमेट। यार मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो √3 है ना, उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 1.7, और जो √15 है उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 3.85, और दिस इज 1.73। सर ये तो कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली, बात समझो यार। ये √3 है ना, दिस इज नियर टू √4, √4 का वैल्यू 2 होता है, उससे थोड़ा कम, या √2 और √3 की वैल्यूज तो आपको पता होनी चाहिए, दिस शुड बी मार्क्ड अप। लेकिन ठीक है, √15 की नहीं पता, लेकिन √15 की मुझे भी नहीं पता। So √15 is very near to √16, √16 is 4, so ये अगर कम है तो ये उससे थोड़ा कम 3.85, और you can take 3.9 as well, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डन। हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझना, राइट? ठीक है, तो अब इसी सिनारियो को कंसिडर करके इफ आई से दैट सर √3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 1.73 एंड √15 का approximate value, I'll write approximate here, approximate value is let's say 3.9, then our values A equal to 6 plus 2 into 1.73 and B equals to 5 plus √15, that's 3.9. So this comes out as 6 plus 1.73 into 2, that is approximately 3.4. So this 2 √3, right? Exactly. So it will be approximately 3.4. So 6 plus 3, that is 9.4. Approximate value we are writing. ठीक है? And this 3.9 plus 5, that is 8.9. You can see a big gap respective to this example, right? A big gap between these two values, even though we have approximated few values. फिर भी हमें बहुत बड़ा गैप दिख रहा है, एंड हेंस वी कैन इजीली से दैट सर A is greater than B. Definitely, right? So this is the first method of approximation. Now what if we don't have to approximate? What if we don't have to approximate? What we need to do is we just need to square it. The next method is squaring it.
द नेक्स्ट मेथड इज स्क्वायरिंग इट, मतलब इन दोनों का हम स्क्वायर करते हैं. लुक हियर, 6 + 2√3 का स्क्वायर, अगेन a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, b स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर 4 into 3 that is 12 and 2 into a into b. So 2 into a is 6 into b is 2√3. 2 into 6 into 2 that is 24√3. Similarly 5 plus √15 का स्क्वायर वुड बी दिस. अब इसको थोड़ा हमने एडजस्ट किया या सिंप्लीफाई किया. आई गॉट दिस 48 plus 24√3, 40 plus 10√15. दिस इज समथिंग दैट वी हैव simplified version. अब देखें, it is 48 plus 24√3. This is 40 plus 10√15. Now these two are almost similar. These two are almost similar, right? But there is a big gap between 40 and 48. And hence we can also say A is greater than B. So this is another method you can apply. जब आप स्क्वायर करते हैं ना तो आपके सामने पिक्चर थोड़ा क्लियर हो जाता है. सर ऐसा क्यों? I'll tell you. Let's say there is a value A, इन दोनों के बीच का गैप है B. लेकिन इसी चीज को जब मैं स्क्वायर करता हूं ना तो ये वैल्यू बड़ी हो गई A स्क्वायर, ये वैल्यू बड़ी हो गई B स्क्वायर. यार ये गैप भी तो बड़ा होगा ना. सो अगर यहां आपको बहुत छोटा गैप था जो देखने में, ढूंढने में या रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम हो रहा था कि यार क्या बड़ा होगा A या B, गैप तो बहुत छोटा दिख रहा है यहां पे. लेकिन जैसे ही आप स्क्वायर करते हैं ना वो गैप बड़ा हो जाता है एंड इट बिकम्स कंप्लीटली विजिबल लाइक दिस, राइट? सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड स्क्वायरिंग इट. कंपैरिजन also applied few surds and indices basic operations. Very simple thing to understand. ठीक है, चलिए let's go to the next part.